Yeah, good morning, guys. Let us start with new chapter today, and that is associates and joint venture. This associate we are going to learn as per AS 23. Joint venture we will learn as per AS 27. Let us begin with first part, and that is accounting for investment in associates in CFAs. So, how to do accounting for investment in associate in consolidated financial statement? This is given under AS 23. So, let us begin with first area, that is associate. Correct? Now, ध्यान से सुनना. Very simple standard, very simple chapter, just you understand the background. But there is one underlying assumption that you all know AS 21 consolidation. So, after that you can consider AS 23 investment in associate in consolidated financial statement. Correct? Let us begin. First terminology we will discuss here. What is associate? Associate क्या होता है? So associate is an enterprise in which investor has associate is an enterprise in which investor has significant influence. एसोसिएट एक ऐसा एंटरप्राइज होता है जिसमें इन्वेस्टर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स power to participate in the financial and operating decision making of the enterprise. Correct? Yeah. How to obtain that significant influence? So if investor has 20% or more, but up to 50% स्टेक, 20% या उससे ज्यादा, बट अप टू 50% स्टेक कोई भी एंटिटी में रहेगा, देन वी कैन से देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. मीन्स इन्वेस्टर एसोसिएट रिलेशनशिप विल बी एस्टैब्लिश्ड. Investor has to prepare consolidated financial statement as per AS 23. Correct? ये पॉइंट समझा? यस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इन्वेस्टर विल डू अकाउंटिंग इन CFAs. सो I can say that for accounting, investor will follow equity method.
which is prescribed by AS 23. So investor will follow which method, guys? Equity method. Now equity method में क्या होता है? So equity method में I would suggest you should remember few steps, but before that, under equity method, सुनना अच्छे से, under equity method, the carrying value of investment in associate will increase or decrease if there is a change in the equity of associate. एसोसिएट का इक्विटी कैसे चेंज होगा? इक्विटी मतलब नेट एसेट, इक्विटी मतलब नेटवर्थ, कैसे चेंज होगा? ड्यू टू पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। करेक्ट? हमने एसोसिएट में स्टेक परचेस किया आज, अभी फ्यूचर में एसोसिएट का नेटवर्थ, नेट एसेट कैसे चेंज होगा? तो उसके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉस के कारण चेंज होगा। करेक्ट? सो वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस अपने को अपने इन्वेस्टमेंट में ऐड या लेस करना है। दैट इज इक्विटी मेथड। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। क्लियर? या। सो हाउ मच स्टेप्स वी विल फॉलो? आई वुड सजेस्ट 3 steps we will follow. First one, initially investment should be recognized at cost. Should be recognized at cost. Initially investment को cost पे record करो. Second, subsequently carrying value of investment will increase or decrease due to post acquisition profit or losses of associate. मतलब एसोसिएट का प्रॉफिट या लॉसेस आएगा पोस्ट पीरियड में, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, उसको ऐड या लेस करना है। दैट्स इट। एंड नंबर 3, जस्ट आइडेंटिफाई goodwill. Goodwill means excess payment made or capital reserve. So identify goodwill or capital reserve for the purpose of disclosure. For the purpose of disclosure, just goodwill and capital reserve calculate करना है and उसको disclose करना है. Correct? And how to calculate this goodwill or capital reserve? It is in same way of AS21. जो AS21 कंसोलिडेशन, होल्डिंग सब्सिडियरी का कंसोलिडेशन सीखा था ना, उसमें जैसे गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते थे, वैसे यहां पे भी कैलकुलेट करना है।
we will compare cost of investment with proportionate net worth of associate and we will get goodwill or capital reserve. Agreed? That's it. इक्विटी मेथड में इतना करेंगे हम. इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे बताओ, करेक्ट, फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस माइनस कर दो, अग्रीड, एंड गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व आइडेंटिफाई करो जस्ट फॉर डिस्क्लोजर पर्पस. ओके, नाउ व्हाट फॉर्मेट वी विल फॉलो हियर? So this is consolidated financial statement of investor. हम कैसे सब कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या प्रेजेंटेशन रहेगा वो सीख लो. Consolidated financial statement of investor. Now investor will show investment in associate on asset side, correct, under assets. Under non-current assets, under non-current investment, investor will show this. So initially investment should be at cost, तो ये cost पे रहेगा. Do you agree with this? उसके बाद add or less post acquisition profits, ये ऐड कर देंगे. So we will get carrying value of investment, correct? हाँ, but for presentation purpose ध्यान से सुनना, अपने को ये फर्स्ट ये सेकेंड बस इतना बताना है. But for presentation purpose we have to show this. Tell me, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है एसोसिएट में, मीन्स वी हैव पेड द अमाउंट, हमने किसके लिए पेमेंट किया है? तो वी हैव पेड फॉर शेयर ऑफ नेट एसेट ऑफ एसोसिएट. एसोसिएट के नेट एसेट के लिए पेमेंट किया है, करेक्ट. एंड और किसके लिए पेमेंट किया है? तो और गुडविल, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट किया रहेगा जो हमने, वो गुडविल के लिए पेमेंट किया रहेगा. सो गुडविल, अगर कैपिटल रिजर्व रहेगा तो माइनस करने का. सो गुडविल के लिए पेमेंट किया है. सो इसके लिए हमने पेमेंट किया है, एसोसिएट के नेट एसेट के लिए. गुडविल के लिए हमने पेमेंट किया है. टोटल पेमेंट हमने इन्वेस्टमेंट का इतना किया है, करेक्ट. एड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट करेंगे, सो वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. दिस प्रेजेंटेशन वी हैव टू शो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. बोलो, इतना समझा क्या? पक्का? क्वाइट मैनेजेबल? या? सो AS23 बहुत सिंपल है, वेर इन्वेस्टर एसोसिएट रिलेशनशिप विल बी देयर, करेक्ट. तो इन्वेस्टर CFS बनाएगा, उसमें वो इन्वेस्टमेंट कैसे बताएगा? तो इसमें इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड से बताएगा.
इक्विटी मेथड क्या बोलता है? तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे बताओ, सब्सिक्वेंटली उसको इंक्रीज या डिक्रीज करो अकॉर्डिंग टू पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, एंड गुडविल आइडेंटिफाई करके वी हैव टू डिस्क्लोज इट। तो देखो हमने डिस्क्लोज किया है प्रॉपरली। सो दिस फॉर्मेट वी विल फॉलो। डू यू अग्री विद दिस? या चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। I will read question number 1. A Limited acquires 45% of B Limited. करेक्ट? तो 45% मतलब 20% से ज़्यादा अप टू 50% स्टेक रहेगा, then we have to assume that there is a significant influence. तो यहाँ पे 45% स्टेक है मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सो देर इज अ इन्वेस्टर एसोसिएट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड। करेक्ट? सो ए लिमिटेड बी लिमिटेड, ए लिमिटेड अक्वायर्ड मतलब ए लिमिटेड इन्वेस्टर है, बी लिमिटेड एसोसिएट है। कभी शेयर्स अक्वायर किया है? अप्रैल 1, 2021। करेक्ट? and the price paid मतलब cost of investment was 15 lakhs. I hope everybody understood this. So investment 15 लाख रुपए का किया है, 15 lakhs rupees investment. This is investment in associate at cost. Following are the extract of balance sheet of B Limited. B Limited कौन है? B Limited associate है। करेक्ट? उसका बैलेंस शीट आइटम्स दिया है। कौन से डेट का दिया है? 1 अप्रैल 2021 का दिया है। डू यू अग्री विद दिस? या पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब ये एसोसिएट का नेट एसेट्स है। कितना है? 16 lakhs. कितना है? 16 lakhs. I hope you understood this. उसमें हमारा स्टेक कितना है? तो हमारा 45% स्टेक है। So accordingly we have to do calculation. यहां तक समझा? Yes? चलो अभी ये क्वेश्चन में हम करेंगे क्या बेटा? So in this question we have to calculate or we have to present investment in associate in CFS. Correct? So how to present that? तो step number 1 हम पहले क्या करेंगे पता है? गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज वो हमें डिस्क्लोजर के लिए लगेगा। सो हाउ टू कैलकुलेट गुडविल? तो हम जैसे AS21 में कैलकुलेट करते थे वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। नाउ हाउ वी यूज टू कैलकुलेट इन AS21? So in AS21 we used to compare investment in associate. वहाँ पे investment in subsidiary company था, यहाँ पे investment in associate है। तो investment को हम compare करते थे with the proportionate net worth as on DOA, date of acquisition, उसके साथ कंपेयर करते थे तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व मिल जाता था। लाइकवाइज यहाँ पे गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। वी विल कंपेयर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट विच इज 15 lakhs। करेक्ट? यस? ओके। किससे कंपेयर करेंगे हम लोग? सो वी विल कंपेयर दैट विथ नेट एसेट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 lakhs, सिक्योरिटीज प्रीमियम एसोसिएट का 1 लाख, रिजर्व्स 5 lakhs। तो टोटल नेट एसेट कितना आया? 16 lakhs का नेट एसेट है। करेक्ट? बट उसमें अपना प्रपोर्शन कितना है? सो अपना प्रपोर्शन सिर्फ 45% है। सो 45% ऑफ 16 lakhs इज 7,20,000। मीन्स 7,20,000 का नेट एसेट एसोसिएट का परचेस करने के लिए वी पेड 15 लाख रुपीज। तो कहना ऐसे हमने एक्सेस पेमेंट किया एंड दैट एक्सेस पेमेंट इज कंसिडर्ड एज गुडविल। सो 7,80,000 का गुडविल आएगा, दैट इज 15 lakhs माइनस 7,20,000।
I hope everybody understood this. Correct? Okay. अभी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें we have to present how investment in associate will appear. Correct? ध्यान से 3 steps याद है या इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट, फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स रहेंगे तो उसको हम ऐड करेंगे. करेक्ट? या सो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स विल बी एडेड एंड कुछ गुडविल कैलकुलेट किया उसको हम डिस्क्लोज करेंगे. Yes? Yeah. So, I can say that we have already calculated goodwill. Now, in this question, B Limited is having net profit of rupees 3 lakh. 3 लाख रुपए का करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है. And out of that, B Limited, that is associate, had paid dividend of 1 lakh rupees for the year ended 31st March 2022. Do you agree with this? Correct? And we are supposed to find out the carrying value of investment which will appear in the consolidated financial statement of investor. So, कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो अपने 3 स्टेप्स. इन्वेस्टमेंट को किस पे प्रेजेंट करेंगे? कॉस्ट पे. सो ये देखो, वी हैव टू कैलकुलेट कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20x2. I can say that investment in associate as per AS 23 will be presented here. Initial investment will be at cost. Add post acquisition profits which is 3 lakh in our case. उसका 45% is our stake. तो proportionate post acquisition profit will be added. And ये profit में से डिविडेंड पे किया है. सो डिविडेंड पेड इज 1 लाख, उसका 45%, सो 45,000 विल बी डिडक्टेड. सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनिशियली रिकॉग्नाइज किया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड किया एंड डिविडेंड पेड माइनस किया, क्योंकि एक्चुअली पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड प्रॉफिट इज ओनली 90,000. सो 1,35,000 माइनस 45 करेंगे तो नेट इफेक्ट विल बी 90,000. करेक्ट? बट वी हैव टू डिस्क्लोज गुडविल. तो गुडविल कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो देखो, हमने ये जो 15 लाख पेमेंट किया है उसमें से नेट एसेट का पेमेंट 7,20,000 के लिए है एंड 7,80,000 वी पेड फॉर गुडविल. तो गुडविल ऐड किया एंड शेयर ऑफ नेट एसेट हमने पहले प्रेजेंट किया. सो दिस विल बी द प्रेजेंटेशन. शेयर ऑफ नेट एसेट के लिए वी पेड, गुडविल के लिए वी पेड. करेक्ट? इन शॉर्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15 lakhs. उसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट ऐड कर दो एंड डिविडेंड पेड प्रोपोर्शनेट माइनस कर दो. वी विल गेट द कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज 15,90,000. दैट्स इट. दिस इज योर AS 23. बहुत सिंपल है AS 23. आई होप यू अंडरस्टूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23. Guys, now let us start with joint venture. So we'll start with financial reporting of interest in joint venture as per AS 27. Correct? First terminology we are going to learn. What is joint venture? Joint venture is a contractual arrangement. Joint venture is contractual arrangement
where two or more parties these two or more parties are called as venturers. So joint venture is a contractual arrangement where two or more parties undertakes an economic activity subject to joint control. In AS21, the keyword is control. In AS23, keyword is significant influence. And in AS27, the keyword is joint control. There has to be a joint control. Now, what is joint control? Joint control is power to govern the decision making, financial and operating decision making of a particular economic activity. Correct? Yeah. So it is a contractual arrangement where two or more parties undertake an economic activity subject to joint control. इसको हम बोलते हैं joint venture. मतलब दो या उससे ज्यादा लोग मिलके एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं subject to joint control. That activities is called as, that relationship between co-venturer is called as joint venture. Correct? Yeah. Now there are three types of joint venture. There are three types of joint venture. First is jointly controlled operation, JCO. Second is jointly controlled asset, correct, that is JCA. And third is jointly controlled entity, that is JCE. Under jointly controlled operation and jointly controlled assets, there is no legal separate entity will be established. Whereas in jointly controlled entity, one new entity will be established and that entity will perform economic activity. Correct? Ye samjha? Okay. Now let us start with jointly controlled operations. What is jointly controlled operations? Under this, let us take example A Limited, B Limited, both entered into a contractual arrangement for performing an economic activity. That activity can be construction of bridge, dam, bullet train, etc. A Limited, B Limited entered into a contractual arrangement just for performing an economic activity. The moment economic activity will get over, their joint venture will get over. That joint venture is called as jointly controlled operation. They both came together just for operating an economic activity.
correct. Now, how to do accounting in this case? I can say that under jointly controlled operation, there is no separate legal entity. So, iska accounting kaise karenge? So, accounting is very simple here. I can say that we will prepare one memorandum or draft consolidated P&L. Correct? What we will prepare? Memorandum, rough or draft consolidated P&L of entire economic activity, entire joint venture activity. क्यों बनाएंगे ये? To find out overall profit of entire project. Do you agree with this? Yeah. And each venturer will prepare joint venture account in their own books. बोलो ये समझा कि नहीं समझा? करेक्ट. एक कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाएंगे टू फाइंड आउट द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड दोनों वेंचरर, जितने भी वेंचरर रहेंगे, दे विल प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट. क्लियर? ओके. नाउ ये हमने क्या कंप्लीट किया? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन. चलो इसका एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं. Question number 2. I can say Mr. A, B and C enter into a joint venture to purchase land. ये लोग का joint venture देखो कैसा है. ये लोग land purchase करेंगे. They will construct and sell flats. They will construct and sell flats. तो लैंड परचेस करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं एंड फ्लैट सेल करते हैं. दैट इज देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी. मिस्टर ए क्या करता है? परचेस लैंड. मिस्टर ए लैंड परचेस किया 60 lakhs का ऑन 1/1/2007. कौन से डेट को परचेस किया? 1/1/2007. For the purpose, he took loan from a bank, 50 lakh rupees at 8% interest per annum. He also paid registration fees of 60,000 on same day. ये सब किसने किया? Mr. A ने. So these are the expenditure incurred by Mr. A. अभी Mr. B क्या कर रहे हैं? Mr. B supplied materials 4,50,000 from his own godown. And further he purchased the material for 5 lakhs for joint venture. So उसने मटेरियल गोडाउन से 4.5 लाख का सप्लाई किया एंड 5 लाख का मार्केट से परचेस करके सप्लाई किया. मिस्टर सी क्या करता है? मिस्टर सी met all other expenses of advertisement, labor, other incidental expenses which turn around to be 9 lakhs. So मिस्टर सी ने 9 लाख का एक्सपेंडिचर किया. यहां तक समझा? या on 30th June 2007, each of the venturer agreed to take away one flat each to be valued at 10 lakh rupees each. So क्या डिसाइड किया कि बिल्डिंग बनाएंगे, पहले लैंड परचेस करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, फिर फ्लैट सेल करेंगे. बट सारे फ्लैट सेल नहीं किए ये लोग ने.
तीनों ने एक एक फ्लैट खुद के लिए रखा है, दैट इज 10 लाख रुपीज। ओके, सो ये ड्राइंग्स हो गया। एंड रेस्ट वर सोल्ड बाय देम एज फॉलोज। मिस्टर ए ने 40 लाख का सेल किया, मिस्टर बी ने 20 लाख का सेल किया, मिस्टर सी ने 10 लाख का सेल किया। करेक्ट? ओके। लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डे, मतलब 30 जून को लोन भी ये लोग ने पे कर दिया। किसने पे किया? मिस्टर ए ने, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ओके, यहां तक क्लियर। उसके बाद नेट प्रोसीड्स विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स, दैट इज वेंचरर्स, इक्वली। You are required to prepare draft consolidated P&L and joint venture account in the books of each venturer. Clear? So this question is basically related to JCO. It is jointly controlled operation. अभी क्या बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड पीएनएल। ये कंसोलिडेटेड पीएनएल में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो मिस्टर ए, बी, सी तीनों ने जो भी एक्सपेंडिचर किए हैं सब रिकॉर्ड करेंगे। करेक्ट? तीनों ने जो सेल किया है वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तीनों ने जो फ्लैट विड्रॉ किया है फॉर सेल्फ कंजम्पशन वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। इन शॉर्ट, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओवरऑल प्रोजेक्ट का पीएनएल बनेगा। सो डेबिट में एक्सपेंसेस लिखेंगे, क्रेडिट में इनकम्स एंड विड्रॉवल लिखेंगे। करेक्ट? Let us start with draft consol P&L. This is draft consolidated P&L. We will start. फटाफट चेक करो, बहुत सिंपल है। ए ने क्या परचेस किया? लैंड परचेस किया 60 लैक्स का। फिर ए ने लोन लिया है। नाउ दिस लोन इज टेकन बाय ए इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, क्योंकि ये लोन लेके उसने 60 लैक्स रुपीस का लैंड परचेस किया है। तो ये लैंड का जो अमाउंट है उसमें लोन इंक्लूडेड है। सो लोन इज टेकन बाय मिस्टर ए इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। उसका एंट्री हम प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे, बट यस जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंटरेस्ट प्रोजेक्ट का एक्सपेंडिचर रहेगा, सो वो इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे। करेक्ट? या सो 60 लैक्स का लैंड परचेस किया एंड 60,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस पे किया मिस्टर ए ने। सो ये एंट्री क्या करेंगे? तो ड्राफ्ट कंसोल पीएनएल में डेबिट साइड पे परचेस ऑफ लैंड बाय मिस्टर ए, रजिस्ट्रेशन फीस पेड बाय मिस्टर ए, इतना रिकॉर्ड हो गया। करेक्ट? ओके। उसके बाद मिस्टर बी ने क्या किया? 4,50,000 फ्रॉम हिज गोडाउन, उसने मटेरियल सप्लाई किया और 5 लाख का परचेस किया। सो टू मटेरियल सप्लाइड मिस्टर बी, total 9,50,000. I hope you understood this. Correct? And C ने क्या किया? Other expenses, तो other expense C ने पे किया है and that is 9 lakh rupees. Clear? पक्का? After that, each venturer agreed to take away one flat of 10 lakhs. It is considered as drawings. So drawings will be credited by flat taken by Mr. A, Mr. B, Mr. C. That is 10 lakh, 10 lakh, 10 lakh. Clear? Okay. What is next? Rest of the flats sold by them. तो वो लोग ने सेल किया 40 lakh, 20 lakh, 10 lakh. So sale will be credited in trading P&L. So Mr. A, B, C का sale total 70 lakhs. I hope you understood this. And then Mr. A ने interest pay किया. This interest will be charged off to P&L. कितने का लोन रहेगा? So लोन था 50 lakhs का, उस पे 8% इंटरेस्ट था। लोन वॉज टेकन ऑन 1st January, लोन वॉज रीपेड ऑन 30th June. So 6 months का interest will be considered. Interest will be debited here to bank interest. I can say $50 lakhs into 8% into 6/12. So 2 lakh rupees का इंटरेस्ट आएगा।
ये किसने पे किया रहेगा? मिस्टर ए ने पे किया। करेक्ट? ओके, सो वी हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग। अभी अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड इज मोर, दैट इज 1 करोड़। डेबिट में भी 1 करोड़ लिखेंगे एंड देन देयर इज अ प्रॉफिट, सो इट इज अ प्रॉफिट and that profit will be distributed to Mr. A, Mr. B and Mr. C. Total profit is 18,90,000. Profit is shared equally, clearly question में दिया है, तो 630, 630, 630। ये हो गया अपना ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड पीएनएल। करेक्ट? ओके, अभी कौन सा अकाउंट बनेगा? तो मिस्टर ए के बुक में वी विल प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, मिस्टर बी के बुक में वी विल प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, मिस्टर सी बुक में वी विल प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट। करेक्ट? या, सो नाउ हाउ टू प्रिपेयर दैट? तो मिस्टर ए जॉइंट वेंचर अकाउंट में खुद के ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। मिस्टर बी जॉइंट वेंचर अकाउंट में सिर्फ खुद के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा एंड मिस्टर सी लाइकवाइज इन जॉइंट वेंचर अकाउंट ही विल रिकॉर्ड हिज ओन ट्रांजैक्शंस ओनली। करेक्ट? लेट अस बिगिन। फर्स्ट, मिस्टर ए ने लैंड परचेज किया 60 lakhs का, तो ये कौन रिकॉर्ड करेगा? मिस्टर ए रिकॉर्ड करेगा। नाउ मिस्टर ए ने परचेज किया तो क्या एंट्री करेगा मिस्टर ए? जॉइंट वेंचर के लिए उसने परचेज किया है तो वो एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू 50 लाख का उसने बैंक लोन लिया है, सो बैंक लोन क्रेडिट करेगा, और 10 लाख उसने खुद के पॉकेट से पे किए हैं, सो 10 लाख बैंक अकाउंट क्रेडिट करेगा। सो व्हाट वुड बी द एंट्री? जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में आएगा बिकॉज दिस एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर एक्टिविटी, सो जॉइंट वेंचर के डेबिट में 2 बैंक लोन एंड 2 बैंक। डू यू अग्री? ओके, उसके बाद मिस्टर ए ने क्या स्पेंड किया? तो 60,000 रजिस्ट्रेशन फीस पे किया, सो क्या एंट्री करेगा? कौन करेगा? बाय द वे मिस्टर ए रिकॉर्ड करेगा। मिस्टर ए किसके बुक में रिकॉर्ड करेगा? खुद के बुक में रिकॉर्ड करेगा। क्या एंट्री करेगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन फीस। ये मिस्टर ए का हो गया। अभी मिस्टर बी ने क्या किया? मटेरियल सप्लाई किया 4,50,000 का एंड 5 लाख का परचेज किया, तो वो विल रिकॉर्ड दिस, तो डेफिनेटली मिस्टर बी रिकॉर्ड करेगा। मिस्टर बी क्या एंट्री करेगा? मटेरियल सप्लाई किया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू मटेरियल का एंट्री करेगा, सो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट मटेरियल सप्लाइड। करेक्ट? एंड बाकी का मटेरियल परचेज किया है उसके लिए क्या एंट्री करेगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज मटेरियल परचेज्ड। क्लियर? In other words, Mr. B is incurring this expenses on behalf of joint venture. So joint venture को चार्ज करेंगे और उसको चार्ज करना है तो डेबिट होगा। क्लियर? चलो, उसके बाद मिस्टर सी ने क्या किया? तो सी ने 9 लाख का एक्सपेंडिचर किया है तो सी खुद के बुक में रिकॉर्ड करेगा एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में 9 lakhs। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट, 30th जून को ईच वेंचरर विल टेक 1 फ्लैट। एक फ्लैट लिया सबने, तो सब लोग एंट्री करेंगे। पहले मिस्टर ए क्या एंट्री करेगा? तो मिस्टर ए एंट्री करेगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और यू कैन से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। करेक्ट? टू जॉइंट वेंचर, सो जॉइंट वेंचर में 10 lakhs क्रेडिट होगा। लाइकवाइज ये भी जॉइंट वेंचर में 10 lakhs क्रेडिट करेगा। लाइकवाइज ये भी जॉइंट वेंचर में 10 lakhs क्रेडिट करेगा। करेक्ट? और उसके बाद तीनों ने फ्लैट सेल किए हैं, 40 लाख, 20 lakhs एंड 10 लाख का सेल है, तो तीनों एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर सेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। क्लियर एवरीबॉडी? यस। उसके बाद क्या दिया है? आफ्टर सेल लोन वॉज रीपेड। ओके, तो लोन कौन पे करेगा? मिस्टर ए खुद पे करेगा। उसके लोन के साथ इंटरेस्ट पे करेगा, दैट इंटरेस्ट विल बी चार्ज टू जॉइंट वेंचर। तो ये इंटरेस्ट किसने पे किया रहेगा? 2 लाख रुपीस का, तो मिस्टर ए ने पे किया रहेगा, तो मिस्टर ए रिकॉर्ड करेगा। क्या एंट्री करेगा मिस्टर ए? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख का इंटरेस्ट। क्लियर? या और जॉइंट वेंचर के पास से हाउ मच इज रिसीवेबल एज अ प्रॉफिट?
सो प्रॉफिट वॉज 6,30,000, तो ये 630 मिस्टर ए को मिलना चाहिए. सो एंट्री आएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, मीन्स दिस प्रॉफिट इज रिसीवेबल फ्रॉम जॉइंट वेंचर 6,30,000. डू यू अग्री विथ दिस? लाइकवाइज बी भी एंट्री करेगा टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर एंड सी भी एंट्री करेगा टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर. क्लियर? चलो, जो इंफॉर्मेशन दिया था सब कंप्लीट कर दिया. ओके, अभी पहले मिस्टर सी का बुक्स क्लोज करो. सी का बुक्स क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड इज मोर, डेबिट साइड इज लेस. करेक्ट? क्रेडिट साइड 20 lakh rupees is payable and 15,30,000 is receivable, means 4,70,000 पे करना है. मिस्टर सी सपोज टू पे. किसको पे करेगा? तो वो मिस्टर ए को पे करेगा. करेक्ट? सो एंट्री आएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहां पे जॉइंट वेंचर मिस्टर ए का जॉइंट वेंचर में बाय बैंक अकाउंट 4,70,000. करेक्ट? ओके. फिर मिस्टर बी का अकाउंट क्लोज करो. 30 lakh वॉज पेएबल एंड डेबिट में 15,80,000 इज रिसीवेबल. सो नेट कितना आया? सो नेट 14,20,000 इज पेएबल टू मिस्टर ए. तो जॉइंट वेंचर टू बैंक मिस्टर ए को पे कर देंगे, एंड मिस्टर ए को पे किया तो मिस्टर ए क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर 14,20,000. इन शॉर्ट इसके बुक में ये दोनों बैलेंसिंग फिगर है. इस दोनों के बुक में ये बैलेंसिंग फिगर है. अकाउंट टैली हो जाएगा. दैट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जॉइंट वेंचर. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. या सो दिस इज अवर jointly controlled operation. So guys, now we will start with jointly controlled asset. Now, under jointly controlled asset, no new legal separate entity will be established. Correct? Then what will happen in this? It is very simple. I can say there is a company A Limited, B Limited. I can say HPCL, B Limited is BPCL. Hindustan Petroleum and Chemical Limited, Bharat Petroleum and Chemical Limited. So A Limited, B Limited both entered into joint venture arrangement for constructing and operating a pipeline, oil pipeline. This is their economic activity. So what A Limited and B Limited does? They construct, they came together, they will construct and operate oil pipeline. दोनों मिलके एक एसेट कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर वो एसेट को वो लोग ऑपरेट करेंगे. करेक्ट? या सो दिस इज जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट. बोथ विल कंस्ट्रक्ट, बोथ विल ऑपरेट दिस एसेट. तो दोनों फिर ये इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे? हाउ दे विल डू अकाउंटिंग फॉर द सेम? सो इन दिस सिनेरियो, consolidated balance sheet of that economic activity, matlab I can say asset. Correct? So first consolidated balance sheet will be prepared
and second, each venturer will record their share of asset and share of expenses in their own separate financial statement. करेक्ट. सो क्या बनाएंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फ्रॉम दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, and each venturer will record their share of asset and their share of expenses in their separate financial statement. Correct? So this is our jointly controlled asset. So though entity, two or more parties, two or more venturers will come together, they will construct the asset and they will operate that asset jointly. Correct? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो इसका अकाउंटिंग कैसे करने का, लेट अस चेक इट आउट. क्वेश्चन 3, A Limited, B Limited, C Limited decided to jointly construct a pipeline to transport gas from one place to another that was manufactured by them. Okay. For the purpose, following expenditure was incurred by them. बोलता है ये पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करने का बिजनेस है लोग का, कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड देन दे विल ऑपरेट. तो क्या क्या एक्सपेंडिचर इंकर किया है वो लोग ने? तो बिल्डिंग 12 लाख का परचेज किया और कंस्ट्रक्ट किया, which is to be depreciated at 5%. फिर पाइपलाइन 60 लाख रुपीस का कंस्ट्रक्ट किया, which is to be depreciated at 15%. कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स 3 लाख रुपीस के परचेज किए, which is to be depreciated at 40%. व्हीकल्स 9 लाख रुपीस के परचेज किए, which is to be depreciated at 20%. मतलब कैन आई से देयर आर 4 assets: बिल्डिंग, पाइपलाइन, computers and other electronics, and various vehicles. So there are 4 assets in this economic activity. They also decided to equally bear the total expenditure incurred on the maintenance of pipeline, which is 6 lakhs rupees each year. मतलब there are 3 venturers, तीनों 2-2 लाख रुपया बेयर करेंगे मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर of this pipeline. You are required to show consolidated balance sheet, मतलब combined balance sheet, and extract of P&L, correct? And balance sheet of each venturer. Balance sheet of each venturer. समझा ये? चलो स्टार्ट करते हैं. Consolidated balance sheet. Now how to prepare consolidated balance sheet? So it is very simple. I can say that first we will have equity and liabilities. Then we will have shareholders fund. In that we have only one item, that is amount contributed, that is share capital. Correct? Now next, second is asset. Share capital का फिगर कैसे आया थोड़ी देर में बात करते हैं. Assets, we will have non-current assets, or non-current asset में property, plant and equipment, that is PPE. For that we will prepare note number 2. So let us start with note number 2. Now note number 2 is talking about property, plant and equipment. Now property, plant and equipment combined है, consolidated है, तो land and building कितने का था? लैंड एंड बिल्डिंग वॉज ऑफ 12 लाख माइनस 5%. सो लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख माइनस 5%, सो 11 लाख 40. ये तीनों को शेयर मिलेगा इसमें. ए लिमिटेड का 380, बी लिमिटेड का 380, सी लिमिटेड का 380. करेक्ट? लाइकवाइज प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट है, तो प्लांट एंड मशीनरी आई कैन से
pipeline 60 lakhs, 60 lakhs minus 15%. So we will have 51 lakhs. This is basically your pipeline. Now 51 lakhs तीनों वेंचरर को हम लोग इक्वली शेयर करेंगे, 17, 17, 17. Next, computers and other electronics 3 lakhs minus 40% depreciation, so 1,80,000 आएगा. All three will share that 60, 60, 60. And vehicles कितने के थे? Vehicles 9 lakh minus 20%, that is 180, 720, 720 को डिवाइड किया 240, 240, 240. Clear everybody? Yeah. So property, plant and equipment का नोट कंप्लीट किया. टोटल विल बी 71,40,000. और ये 71,40,000 will appear under PPE and that would be the total of our asset. तो अगर asset 71,40,000 है तो liability भी 71,40,000 आएगा. तो शेयर कैपिटल इज द ओनली आइटम, वो भी 71,40,000 आएगा. देन यू कैन हैव शेयर कैपिटल नोट where we have A limited, B limited, C limited, 71,40 and the amount contributed is this much. Clear? Pakka? So this is consolidated balance sheet. And after that we have to prepare extract of P&L and balance sheet for each venturer. हर venturer का books में in their SFS we will prepare statement of P&L, just an extract, and statement of balance sheet, just an extract. Correct? In the books of A Limited, P&L statement, and we have extract of balance sheet. Correct? ए लिमिटेड का सीख लिया ना बेटा, वैसे ही सेम फिगर्स एवरीथिंग सेम बी लिमिटेड का होगा, एवरीथिंग सेम सी लिमिटेड का होगा. करेक्ट? सो ए लिमिटेड का पीएनएल. नाउ पीएनएल में क्या क्या आइटम्स आएंगे? सो पाइपलाइन से रिलेटेड देयर आर ओनली टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. फर्स्ट इज डेप्रिशिएशन एंड सेकेंड वन वुड बी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस that will go in other expense. So you can check here in P&L we will have depreciation and other operating expense, that is pipeline expense. Total expense was 6 lakhs. उसमें A का शेयर कितना है? क्योंकि A खुद का ही शेयर रिकॉर्ड करेगा which is 2 lakh. Correct? Okay. And depreciation and amortization का बहुत सिंपल एक नोट बनेगा. So depreciation and amortization we have calculated here. This is our depreciation and amortization expense. Land and building पे कितना depreciate? 20,000. Machinery पे 3 lakh. Computers पे 40 and vehicles पे 60,000. तो इनका शेयर हुआ 4,20,000 depreciation and amortization. Correct? एंड बैलेंस शीट बनाएंगे. सो बैलेंस शीट में ए के बैलेंस शीट में एसेट आएगा, एसेट में नॉन करंट एसेट, उसमें पीपीई, पीपीई का नोट नंबर 2 बनेगा. करेक्ट? नाउ नोट 2 में क्या क्या आएगा? तो बहुत सिंपल है. पीपीई में फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें लेस डिप्री, प्लांट एंड मशीनरी लेस डिप्री, कंप्यूटर्स लेस डिप्री, व्हीकल्स लेस डिप्री. टोटल विल बी 23,80,000. करेक्ट? खुद का शेयर लेने का. लैंड एंड बिल्डिंग टोटल 12 lakhs था, तो 12 lakh में से उसका शेयर है 4 lakh, उस पर 5% डिप्रीशिएशन, सो 20,000, सो 380. पाइपलाइन 60 lakhs था, तो खुद का ए का शेयर है 20 lakhs माइनस 15% डिप्री, सो विल गेट 17. लाइकवाइज कंप्यूटर वॉज 3 lakhs, तो 3 lakhs में इसका शेयर है 1 lakh, उस पर 40% डिप्री, तो 60,000. Then vehicle was 9 lakh, इनका शेयर है 3 lakh,
20% depre, 60,000, so 240. Total 23,80,000 is fixed asset, that is PPE. ये मिस्टर ए का हुआ, वैसे ही मिस्टर बी का भी P&L बनेगा, बैलेंस शीट विथ सेम फिगर्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स. लाइकवाइज मिस्टर सी का भी P&L बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा and notes to accounts. I hope everybody understood jointly controlled asset. Yeah guys, let us start with last part, and that is jointly controlled entity. Under jointly controlled entity, correct, separate legal entity will be established. एक नया एंटिटी बनाएंगे एंड दैट एंटिटी विल परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी. आई वुड गिव यू वन एग्जांपल हियर. ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, both will come together and they will form a new company called as C Limited. This new company is a separate economic entity, and that entity will perform economic activity. करेक्ट. ये सी लिमिटेड एक नया कंपनी बनाया है फॉर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर. आई वुड से दैट एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. So A Limited, B Limited, both will come together, they will form one company, and that company, legal entity, will construct that bridge. Correct? Yeah. This is called as jointly controlled entity. Accounting कैसे करेंगे? So each venturer will prepare its own separate financial statement and A लिमिटेड खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा सेपरेट, बी लिमिटेड खुद का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, एंड सी लिमिटेड इज जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, सेपरेट एंटिटी है, ये भी खुद का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा. करेक्ट. ओके. Each venturer will prepare its own separate financial statement, and A Limited and B Limited और क्या बनाएंगे? They will prepare consolidated financial statement on proportionate consolidation basis. Proportionate basis पे they will do consolidation. So as per AS 27 we have to follow proportionate consolidation method. Proportionate basis पे मतलब ये A लिमिटेड है ना बेटा, इसका 50% स्टेक है C लिमिटेड में, एंड B लिमिटेड का भी 50% स्टेक है. तो A लिमिटेड ने खुद का SFS तो बना लिया है, बी लिमिटेड ने भी खुद का एसएफएस बना लिया है. एसएफएस मींस पता है ना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सी लिमिटेड ने भी खुद का एसएफएस बना लिया है. अभी ए लिमिटेड सीएफएस बनाएगा बिकॉज ए लिमिटेड इज वन ऑफ द वेंचरर. सो ए लिमिटेड सीएफएस कैसे बनाएगा? तो ए लिमिटेड खुद का बैलेंस शीट लेगा प्लस सी लिमिटेड के एसेट्स एंड लायबिलिटीज उसमें ऐड करेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, पूरा ऐड नहीं करेगा. AS 21 में वी यूज टू कंसिडर टोटल कंसोलिडेशन मेथड, AS 23 इक्विटी मेथड, AS 27 proportionate consolidation method. Correct? Each venturer will prepare what?
its own SFS and CFS on proportionate consolidation basis. I hope you understood this. चलो अभी इसका क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. A लिमिटेड एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर विद B लिमिटेड. ये दोनों कौन है? वेंचरर्स on 1:1 basis, okay, equal basis. A new company C Limited was formed for the same purpose and following balance sheet of all the three companies are given. So C Limited is a separately established entity. So it is jointly controlled entity. समझा? Yes. A लिमिटेड का शेयर कैपिटल इज गिवन, B लिमिटेड का शेयर कैपिटल इज गिवन, C लिमिटेड का शेयर कैपिटल इज गिवन. करेक्ट? तो C लिमिटेड का शेयर कैपिटल एलिमिनेट होगा. बेटा किसके सामने एलिमिनेट होगा? तो A एंड B लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट के सामने एलिमिनेट होगा. बिकॉज C लिमिटेड में किसने इन्वेस्टमेंट किया है? तो A ने इन्वेस्टमेंट किया है, B ने इन्वेस्टमेंट किया है. करेक्ट? चलो तो शेयर कैपिटल आराम से 10 लाख, 750, 5 लाख. रिजर्व्स एंड सरप्लस A का 18 लाख, B का 76 लाख. C का 12 लाख रिजर्व्स एंड सरप्लस है. तो ये जो C का रिजर्व्स एंड सरप्लस है ना बेटा, वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है. क्योंकि C लिमिटेड फॉर्म होने के बाद, मतलब A एंड B ने इन्वेस्टमेंट करने के बाद C लिमिटेड ने ये प्रॉफिट कमाया रहेगा. सो इट इज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट. पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज अर्न्ड प्रॉफिट. इट विल बी कंसोलिडेटेड, नॉट फुल्ली बट प्रोपोर्शनेटली. करेक्ट? लोन्स A का इतना, B का इतना, C का इतना. करंट लायबिलिटीज PPE. इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर. Investment in joint venture is given here. Correct? So joint venture में A ने कितना इन्वेस्ट किया है बेटा? 2,50,000. B ने कितना इन्वेस्ट किया है? 2,50,000. मतलब C लिमिटेड में 5 लाख जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, वो B लिमिटेड और A लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है. So whenever we will prepare consolidated balance sheet, तो ये 250 के सामने ये 250 और 250 के सामने ये 250, मतलब 5 लाख कैंसिल हो जाएगा. करंट एसेट इज गिवन 2,125 and 50,000. बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? या एक फिगर में इधर एरर है. दिस इज 16 नॉट 76. करेक्ट? चलो स्टार्ट करते हैं. प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ A लिमिटेड, B लिमिटेड, वेंचरर का बैलेंस शीट बनाने का अंडर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड. मतलब A लिमिटेड का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगा, B लिमिटेड का भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगा. करेक्ट? कैसे बनाना है? बहुत सिंपल है, मेरे साथ रहना. आई विल स्टार्ट. सुनो, वी विल स्टार्ट विथ A लिमिटेड्स बैलेंस शीट. A लिमिटेड के बैलेंस शीट में बेटा क्या आएगा? तो सबसे पहले A लिमिटेड का खुद का शेयर कैपिटल आएगा. B लिमिटेड के बैलेंस शीट में क्या आएगा? तो B लिमिटेड के बैलेंस शीट में सबसे पहले खुद का शेयर कैपिटल आएगा. यू कैन चेक दिस. दिस इज बैलेंस शीट ऑफ A लिमिटेड. दिस इज बैलेंस शीट ऑफ B लिमिटेड. सो A लिमिटेड का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 10 लाख खुद का कैपिटल आया एंड B लिमिटेड में खुद का 7,50,000 कैपिटल आया. डू यू अग्री विद दिस? C लिमिटेड का कैपिटल विल गेट एलिमिनेटेड अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस. A लिमिटेड का रिजर्व है 18 लाख. तो A का 18 लाख तो आएगा ही, प्लस C लिमिटेड का प्रोपोर्शनेट हम ऐड करेंगे. तो C लिमिटेड का रिजर्व है 12 लाख, उसका 6 लाख, 1:1 है ना इन्वेस्टमेंट. 6 लाख A लिमिटेड में ऐड होगा. मतलब A लिमिटेड का रिजर्व कितना बनेगा? 12 लाख
का हाफ 6 lakhs, तो 18 lakhs plus 6 lakhs 24 lakhs, and here 16 lakhs plus 6 lakh 22 lakhs. तो चेक करो ए लिमिटेड का रिजर्व कितना है, 24 lakhs. नोट नंबर 1 में देख लो, आपको समझेगा. ए लिमिटेड का खुद का रिजर्व 18 lakhs था, सी लिमिटेड का 6 lakhs, टोटल 16 lakhs. लाइकवाइज बी लिमिटेड का 16 plus 6 22 lakhs. एंड नोट चेक कर लो, 16 lakhs, 6 lakhs, 22 lakhs. डू यू अग्री विद दिस? या नेक्स्ट, लोन. ए का लोन 3 lakh, बी का लोन 4 lakhs, करेक्ट. और सी का लोन है 2 lakh, तो 2 lakh का प्रोपोर्शनेट ऐड होगा ए में, प्रोपोर्शनेट ऐड होगा बी में. सो 1 lakh दोनों में ऐड करेंगे. सो लोन विल बिकम 4 lakhs, करेक्ट, विच इज योर नोट नंबर 2. एंड हियर लोन विल बिकम 5 lakhs. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. देन करंट लायबिलिटीज 4 lakh है, उसमें 50,000 ऐड करेंगे, 250 में भी 50 ऐड करेंगे. सो 4,50,000 करंट लायबिलिटीज. एंड हियर इट विल बी नोट नंबर 3, एंड हियर इट विल बी 3 lakhs. तो फाइनली टोटल 37,50,000 आएगा, यहाँ पे टोटल 42,50,000 आएगा. लायबिलिटीज आर डन. आगे पीपीई. पीपीई कितना है, ए का 30,50,000 और इसका 19,40,000 है, उसका हाफ इसमें ऐड करेंगे. सो दैट वुड बी 9,70,000. सो 30,50,000 ए का पीपीई है, एंड सी का पीपीई 9,75,000. that would become 40,25,000. so 40,25,000 will come here. इधर एक एरर है, इट इज 19,50,000. सो 19,50,000 आप देखेंगे. सो 30,50,000 ए का एसेट है, 975, 40,25,000 पीपीई. लाइकवाइज यहाँ पे 26,25,000 है बी का, 26,25,000 एंड 975 सी का, टोटल 36 lakhs. तो पीपी का टोटल आया 36 lakhs. अग्रीड. बहुत सिंपल है, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड. इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर 2,50,000 विल बी एलिमिनेटेड. ये भी एलिमिनेट होगा सी लिमिटेड के शेयर कैपिटल के सामने, करेक्ट. करंट एसेट 2 lakh है, 2 lakh plus 25, 125 plus 25. So 2 lakh plus 25, 2,25,000. You can check this in note. And here 125 plus 25, 1,50,000. Total will be 37,50,000. Your total will be 42,50,000. Finally balance sheet tallies. Do you agree with this, guys? It is very simple concept. I hope everybody understood. Yeah, that's it. This is the end of associate and joint venture. Thank you.